مہینے میں کتنی بار آپ کہتے ہیں کہ بیگم چھوڑو آج گھر کا کام کاج، باہر چلتے ہیں کسی ریسٹورنٹ میں کھانا کھاتے ہیں؟ پہلے تو یہ معمول تھا، اب بچے بڑے ہونے کے بعد یہ معمول تھوڑا سا کم ہو گیا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، وہ شعر ایک یاد آ گیا کہ مجھے اب احتیاطاً خط نہ لکھنا، میرے بچوں کو پڑھنا آ گیا ہے۔ آپ دونوں گھر میں ایک دوسرے کو کس نام سے پکارتے ہیں؟ اپنے اپنے پورے نام سے۔ پیار میں اور لڑائی میں؟ دونوں ہی جگہ پہ ایک ہی نام لیا جاتا ہے۔ وہ ہمیشہ کہتی ہے سلیم کیا کر رہے ہیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں میں رخسانہ یہ کر رہا ہوں۔ شربت فولاد عرفانی کے مہمان آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ زیادہ جھوٹ بولتے ہیں یا بیگم صاحبہ؟ دونوں ہی جھوٹ کے قریب نہیں پھٹکتے۔ آپ سنا ہے آپ بہت کنجوس ہیں اور آپ نے کبھی بیگم صاحبہ کو کوئی تحفہ نہیں دیا۔ یہ کسی دشمن نے اڑائی ہوگی، خاتون یہاں خانہ کنجوسی نے- کا تصور ہی نہیں ہے۔ اچھا، آپ نے آخری تحفہ کیا دیا تھا؟ مجھے یاد پڑتا ہے گولڈ کا ایک سیٹ دیا تھا۔ شربت فولاد عرفانی کے مہمان دفتر یا دکان یا جہاں بھی آپ کام کرتے ہیں، وہاں سے آپ دن میں خاتون خانہ کو کتنی دفعہ ٹیلی فون کرتے ہیں اور کیا پوچھتے ہیں؟ 2-3 دفعہ تو معمول ہے، اگر نہیں کروں گا تو جاؤں گا کہاں۔ پہلا فون خیریت دریافت کرنے کے لیے کرتا ہوں بیکاز شی از اے ہارٹ پیشنٹ، اچھا، اور دوسرا فون جو ہے وہ پوچھنے کے لیے کرتا ہوں بھائی کیا لانا ہے، اچھا، اور تیسرا فون کچھ چونچے لڑانے کے لیے کرتا ہوں۔ وہ غلام محمد قاصر کا شعر ہے کہ کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام، مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا۔ ٹھیک ہے جی، سوال یہ ہے کہ آپ زیادہ باتونی ہیں یا خاتون؟ میں ہی زیادہ باتونی ہوں، خاتون خانہ تو بیچاری بولتی ہی کم ہیں۔ آپ ہمارے مہمان ہیں شربت فولاد عرفانی کے، آپ نے بڑی دلچسپ باتیں کی، تشریف لے آئیں، آپ کا شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ۔ بیگم اویس، اگر آپ کی اجازت ہو تو اویس کو وقتی طور پر اتنی دور بھیج دوں کہ 5 دن لگ جائیں واپسی پر۔ اجازت ہے۔ جائیے بھائی جی۔ شمع کوکنگ آئل کی مہمان، جو کہنا ہے سچ کہنا ہے، سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہنا ہے۔ جو کہنا ہے سچ کہنا ہے، سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہنا ہے۔ جی، آپ شمع کوکنگ آئل کی مہمان ہیں۔ شمع کوکنگ آئل والوں کی طرف سے میرا پہلا سوال آپ سے ہے کہ صاحب کو، اویس کو جب کبھی غصہ آتا ہے تو یہ اس کا اظہار کیسے کرتے ہیں؟ اپنے بال نوچ لیتے ہیں، چیختے چہاڑتے ہیں، یا وہ برتن توڑ دیتے ہیں، یا کمبل اوڑھ کے سو جاتے ہیں؟ ابھی تک تو غصہ نہیں آیا، میں نے نہیں دیکھا۔ ابھی تک غصہ نہیں آیا؟ ہاں جی۔ خیر سے کتنے دن ہو گئے؟ 20 دن۔ ہائے ہائے۔ اچھا، صاحب کو آپ ویسے نری سونا ہے، لیکن ہر شخص میں کوئی نہ کوئی خامی ہوتی ہے۔ صاحب کو آپ کی کون سی بات ذرا بری لگتی ہے کہ کاش اس لڑکی میں یہ بات نہ ہوتی تو کتنا اچھا تھا؟ میں اعتبار جلدی کر لیتی ہوں لوگوں پہ۔ آپ لوگوں پہ اعتبار جلدی کر لیتی ہیں، تو لوگ تو یہی ویسی لوگ ہیں ابھی تک تو۔ نہیں، ان پہ چلو نہیں۔ جی، کہ لوگوں پہ اعتبار جلدی کر لیتی ہوں، یہ بات انہیں اچھی نہیں لگتی۔
आप दोनों में से ज्यादा कंजूस कौन है? ज्यादा ज्यादा तो कोई भी नहीं है, वैसे मैं हूँ थोड़ी, वो नहीं है। शमा कुकिंग ऑयल की मेहमान, खुदा न खास्ता अगर कभी आप बीमार पड़ जाएं, खुदा न खास्ता, हर चीज हम फर्ज करते हैं, तो ये सारा दिन आप कुर्सी पलंग के पास डाल के बैठे रहेंगे और के कभी परेशान हो जाएंगे और कभी ये कर कभी वो कर, या उसको नॉर्मल लेंगे कि ठीक है आप ठीक हो जाएंगी, मैं दफ्तर जा रहा हूँ? परेशान हो जाएंगे। कितने ज्यादा, बहुत ज्यादा। इतने ज्यादा इतने बहुत ज्यादा। इतने बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। घर में किसका हुक्म चलता है? मेरा। आपका? घर वालों का भी तो घर में ही है सब, मतलब जो वैसे मैं बात कहती हूँ मान लेते हैं। ये तो खैर अभी इस दिन में तो आप कहें गर्दन काट के ले आओ, वो आप गर्दन काट के आ लो जी। शमा कुकिंग ऑयल की मेहमान, शादी से पहले साहब टेलीफोन पर किस किस्म के वादे आपसे करते थे? ये न कहिएगा कि हमने टेलीफोन नहीं किया, अब तो बच्चे इतने इतने से लगे हुए होते हैं सारा दिन। नहीं, वादा तो कोई नहीं था, बस हाल चाल ही पूछते थे। अच्छा, हाल चाल, हाल क्या पूछते थे? क्या कर रही हैं, क्या कर रही हैं, बस यही, क्या हो रहा है, सब ठीक है घर वाले, इस तरह की बातचीत थी। ये तो आखिर में होता है, और सुना। पहली बात हेलो, अब क्या हुआ? हाँ बस ऐसे ही था, क्या हाल है, और बस। अभी ये रात को देर से घर आते हैं या सरे शाम से ही घर में बैठ जाते हैं? देर से आते हैं। देर से आते हैं? 8 बजे 9 बजे के करीब। तो क्या बहाना लगाते हैं कि काहे को देर हो गई? काम था इसलिए। हाय हाय, मीर ने कहा काम थे इश्क में बहुत पर मीर, हम ही फारिग हुए शताबी से। मीर तो जल्दी फारिग हो गया था। ये क्या बहाना लगाते हैं कि दुकान पर या दफ्तर में रश ज्यादा था? यही कहा कहते हैं, मैनेजर जान नहीं छोड़ रहा था, देर हो गई, ये वो। वही पुराना बहाना जो है सारे करते ने, हालांकि होते ये कहीं और हैं, और आके ओहो हो ठंडा पानी दें, आज तक जान ही निकल गई है। आज तो बजाय इसके कि वो उल्टा पूछे, उस पर ही रोब कि छेती ले आते पानी। ये। अच्छा, ये बताएं कि ये अभी तो 20 दिन हुए हैं, कभी मजाक में भी दूसरी शादी का तज़किरा किया है इन्होंने? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई अभी। अभी ऐसी बात नहीं हुई। हम फर्ज करते हैं कि आप खुशी से इजाजत देती हैं कि जा जिथे भी ब्याह करना कर ला, तो पाकिस्तान किस एक्ट्रेस से शादी करेंगे? नहीं करेंगे। आपने इजाजत दे दी है? नहीं करेंगे ही नहीं। कि खूंच झाड़ मार देंगे? हाँ, नहीं करेंगे बस। आपके कहने पर भी नहीं करेंगे? मैंने कहना ही नहीं। ये तो कोई बात नहीं हुई, हम तो फर्ज कर रहे हैं। ये कोई सच्ची थोड़ी ऐसी है, ताकि पता चले कि उनके जहन में कौन है। ये आपके भी फायदे की बात है। नहीं करेंगे, फिर भी नहीं करेंगे। अगर अवैस को एक दिन की बादशाहत मिल जाए तो वो क्या करेंगे? ये गरीबों के लिए काम ये करेंगे। घिसा पिटा फिक्रा। अच्छा चलिए, गरीबों की इमदाद थोड़ी सी हो गई, चलो हो गई, और क्या करेंगे? और हज करेंगे। इको दिन सी हज भी कर रहे होंगे। हज का तो मौसम ही नहीं है और एक दिन की बादशाहत है। मेरा ख्याल है इस पर मान जाते हैं कि पागल हो जाएंगे। नहीं, पागल नहीं होंगे। पागल भी नहीं होंगे, कोई काम भी नहीं करेंगे, की करेंगे एक दिन? मुल्क को सीधी राह पे हुक्मरानों को हटा के खुद हुक्मरान बन जाएंगे, और क्या करेंगे? और अच्छा, जो दूसरा बनने वाला हुक्मरान है, हाँ। उसको तहत एक कर देंगे और खुद हुक्मरान बन जाएंगे। भाई शाबाश, भाई शाबाश। बुलाएं जी जरा। अवैस, आप मेहमान हैं शमा कुकिंग ऑयल बनाने वालों के,
जो कहना है सच कहना है, सच के अलावा कुछ नहीं कहना है। जो कहना है सच कहना है, सच के अलावा कुछ नहीं कहना है। रात को जब आप देर से घर आते हैं तो आप क्या बहाना बनाते हैं? कोई बहाना नहीं बनाता जी, बस काम के सिलसिले में जाना होता है तो काम के सिलसिले में वापसी हो जाती है। कोई बहाना नहीं बनाता, बहाना नहीं बनाते। कोई बहाना नहीं बनाता। आपके नजदीक रात गई रात जब मैं कहता हूं तो वो कितने बजे के करीब आप रात समझते हैं कि हो गई है? मेरे नज़दीक रात 10-11 बजे के करीब होती है, बल्कि 1 बजे तक, मतलब। आप 1 बजे भी रात को घर आते हैं? जी बिल्कुल। रात को 1 बजे? काम के सिलसिले में आना होता है, काम कुछ ऐसा है कि वो कौन सा दफ्तर है जो रात को 1 बजे तक खुला रहता है? हमारी एजेंसी है, माइक्रोफोन जोर से। एडवर्टाइजिंग एजेंसी है एक, तो उस सिलसिले में एड्स वगैरह, मतलब शोज वगैरह, इवेंट्स वगैरह करवाने होते हैं। अच्छा, कोई शूटिंग हो गई, Exactly. कोई हीरोइन आ गई, उसको घर छोड़ने चले गए, ये वो सारा? ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। बहाना नहीं करते आप? नहीं जी, बहाना आके साफ बता देते हैं कि आज वो शूटिंग थी तो जी देर हो गई। बिल्कुल ठीक। मुझे ये बताएं कि खातून ने अगर आपको इजाजत दे भी दी तो आप दूसरी शादी किस अदाकारा से करना पसंद करेंगे? कभी भी नहीं करूंगा। इन्होंने इजाजत दे दी है? कभी भी नहीं। अच्छा ये बताएं, अवैस के शादी से पहले टेलीफोन पर आप आपस में जो गपशप करते थे, किस किस्म की गपशप होती थी? शादी से पहले बात नहीं करते थे हम। मैं नहीं मानता। नहीं करते थे। आजकल तो ये 4 साल का बच्चा भी कान को लगाए बैठा रहता है सारा दिन। नहीं करते थे बात, क्योंकि हम पहले से ही कज़न थे, तो जरूरत पेश नहीं आई हमें इसकी दोबारा। तो आप शादी से पहले दोनों कजन हैं? लो, सारे सवालों का ही बेड़ा कर। वरना मैंने पूछना था कि आप दोनों ने पहली बार एक दूसरे को कहाँ देखा था, कैसे देखा था, पर्दा हटा के ये है वो है, कैसे देखा था पहली बार? हाँ, शादी के बाद घूंघट उठा के देखा था। अच्छा, शादी के बाद घूंघट उठा के देखा था, बाकी सारे तो हैं करके देखे। अच्छा अवैस ये बताएं, शमा कुकिंग ऑयल के आप मेहमान हैं कि घर में किसका हुक्म चलता है, आपका या बेगम साहिबा का? जी अभी तो सिर्फ 1 माह हुआ है शादी जरा को। माइक्रोफोन। 1 महीना हुआ है शादी को अभी तो, लेकिन मानी इन्हीं की जाती है ज़्यादा फिलहाल, क्योंकि मानी इन्हीं की जाती जी है। बिल्कुल, मतलब मुश्तरका फैसला होता है हमारा, जो बेहतर लगे वो। ये तो अब कहने की बातें हैं ना, बस सीधी बात है कि मानी उनकी जाती है। खुदा न खास्ता ये अगर बीमार पड़ जाएं तो आप दफ्तर भूल भाल के कुर्सी साथ रख के बैठे रो रहे हैं, कभी ये दवा दे कभी वो कर, परेशान, या नॉर्मल लेते हैं और कि अच्छा अल्लाह करम करेगा ठीक हो जाएंगी, मैं दफ्तर जा रहा हूँ? नहीं, ऐसा तो नहीं, दफ्तर जा रहा हूँ मैं, बेशक इनके साथ रहूँगा, इनकी हिफाजत करूँगा, इनकी अगर कोई मसला है तो उसको हल करूँगा, वो एक अलग है। लेकिन मेरी जो प्रोफेशनल ज़िंदगी एक अलग हिस्सा है, लेकिन इनकी हिफाजत मेरा पहला मतलब फ़र्ज है। ममार खोवे, वैसे तो ये निरी सोना है, लेकिन हर शख्स में कोई ना कोई खामी होती छोटी सी। इनकी कौन सी बात ऐसी है जो आप दिल में सोचते हैं काश इस लड़की में ये बात ना होती तो कितना अच्छा होता? ऐसी कोई बात नहीं है। खातून का ख्याल है कि इनकी ये आदत है कि ये हर शख्स पर जल्दी एतबार कर लेती है। वो रुपए पैसे का मामला भी हो सकता है, किसी ने उधार मांगा निकाल के दे दिया, ना पता कि वापस कब मिलेगा, ये है वो है। ये इनको कहते हैं कि मेरी ये आदत शायद उन्हें अच्छी ना लगती होगी। आप दोनों में से कंजूस ज्यादा कौन है?